ناول لا حاصل خواب از قلم پلوشہ صافی ایپیسوڈ نمبر 1۔ یہ منظر ایک نفیس سے گھر کا ہے۔ 3 کمروں کے اس چھوٹے مگر پکے مکان میں اختر مینگل صاحب، ان کی بیگم بخت خاتون اور 2 بچے مقیم تھے، بڑا بیٹا ارباز اور چھوٹی بیٹی زمروش۔ اختر صاحب کی غزار کی مین بازار میں کریانے کی دکان تھی۔ بڑا بیٹا ہسپتال میں نرس تھا، جبکہ چھوٹی بیٹی زمروش سرکاری کالج سے سیکنڈ ایئر کر کے گورنمنٹ ہسپتال میں بطور ریسپشنسٹ اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے لگی۔ صوبہ بلوچستان کا یہ ضلع خستار 5800 اسکوائر مائلز کے رقبے پر پھیلا ہوا سرسبز و شاداب وادی ہے۔ یہ ضلع صوبہ بلوچستان کا دوسرا بڑا شہر مانا جاتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے خستار کی بہت بڑی اہمیت رہی ہے۔ خستار کو یونانیوں نے کوریان لکھا ہے۔ خستار ایک چھوٹی سی زرخیز اور پانی سے بھرپور چھلاوان کی چھوٹی مگر بہت خوبصورت وادی ہے۔ جغرافیہ کے ماہر ولیم بیفن نے اپنے 1680 کے نقشہ میں خستار کو چیریان ظاہر کیا ہے۔ سوٹر نے اپنے ہندوستان کے 1740 کے نقشہ میں کوردار ظاہر کیا ہے۔ 7ویں صدی میں عربوں نے اس خطہ کو فتح کیا تو خستار مکمل اسلام کے زیر اثر آیا۔ یاد رہے کہ اسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں خستار پہنچ چکا تھا۔ خستار نام عربی کے 2 الفاظوں کا مرکب ہے۔ خس کا مطلب ہے مضبوطی سے قائم رہنا، جبکہ دار کا مطلب ہے جگہ یا گھر۔ اس طرح خستار کا مطلب بنتا ہے مضبوطی سے قائم رہنے کی جگہ۔ 986 عیسوی میں بن احمد نامی شخص جو بنیادی طور پر عرب تھا، خستار کا گورنر تھا۔ خستار شہر 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک حصہ گورنر کے رہائش کے طور پر استعمال ہوتا، جبکہ دوسرا حصہ عوامی سرگرمی اور کاروبار کے لیے مختص تھا۔ ایک راستہ جو ایران سے نکلتا تھا خستار کو شمال میں قلعت گنداوا سے ہو کر آگے ملتان سے ملاتا، اور دوسرا راستہ خستار کو کیرتھر پہاڑ سے ارباب کی راستہ سیون سندھ سے ہو کر پورے سندھ سے ملاتا تھا۔ خستار میں 4 قلعوں کی کنڈرات ہیں، یعنی کوہیت قلعہ، حلوائی کی چوٹی کا قلعہ، شاہی باغ قلعہ اور خان قائداد خان کا قلعہ۔ خستار کا کوہیت قلعہ، یہ قلعہ یونین کونسل اور باڑ کے میری بھوت کے ٹیلے پر واقع ہے، جسے سیسنیٹ گورنروں نے پتھر اور مٹی سے تعمیر کروائی تھی۔ یہ قلعہ تقریباً 10 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے، جہاں سے خستار کا پورا شہر نظر آتا ہے۔ اس قلعہ کی دیواریں 3 فٹ چوڑی ہیں۔ اس کی مرمت دوبارہ عرب گورنروں کی زیر نگرانی ہوئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ قلعہ تباہ ہو گیا۔ حلوائی کی چوٹی کا قلعہ، چھلاوان کسٹ 1907 کے مطابق ایک اور قلعہ حلوائی کی پہاڑ کی چوٹی پر تعمیر کیا گیا تھا، جو حلوائی کی چوٹی کے قلعہ کے نام سے مشہور ہے، جس سے پورا علاقہ نظر آتا ہے۔ یہ قلعہ ایک زلزلہ میں تباہ ہو گیا۔ شاہی باغ کا قلعہ، ایڈورڈ تھارنٹن اپنی کتاب گیزیٹر آف دا کنٹریز ایڈجسٹنٹ ٹو انڈیا میں لکھتے ہیں کہ مٹی سے بنا ہوا ایک قلعہ ہے جو کہ کھنڈرات میں تبدیل ہوا ہے۔ کیپٹن چارلس میسن اپنی کتاب جھلاوان گزٹ میں لکھتے ہیں کہ جب انگریزوں نے ریاست کی لات پر قبضہ کیا تو اس وقت خستار میں تقریباً 60 سے 70 گھر ہوتے تھے۔ کیپٹن میسن پہلا یورپین ہے جس نے سب سے پہلے ہڑپا کے کنڈرات کو دریافت کی تھی۔ خان میر نصیر خان دوئم کے بعد نومبر 1857 میں اس کے بھائی قائداد خان خان آف قلات بنے تو 1860 میں خستار کی اہمیت کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر ایچ کوک نے اس علاقہ کا دوبارہ دورہ کیا جو برطانوی حکومت کا ملازم تھا۔ میسن بھی کوک کے کام کا ذکر کیا ہے۔ کوک نے جو تفصیلات لکھی ہیں ان کے مطابق خستار میں 200 گھر تھے اور آبادی تقریباً 900 کے لگ بھگ تھی۔ ماضی میں شاہی باغ کے باغات تقریباً 20 ایکڑ پر پھیلے ہوئے تھے۔ قلعہ کے 2 حصے تھے۔ اس قلعہ کے 20 فٹ اونچے ٹاورز اور 5 فٹ اونچی دیواریں کنڈرات میں اب بھی موجود ہیں، جو کہ کراچی روڈ خستار سے نظر آتے ہیں۔ قلعہ سے مٹی کے بنے ہوئے برتنوں کے ٹکڑے ملے ہیں۔ اب بہت سے موجودہ سرکاری اور غیر سرکاری عمارتیں اس کے ارد گرد بنی ہوئی ہیں۔ یہ قلعہ یونین کونسل لزوں میں واقع ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قلعہ تقریباً 300 سال پرانا ہے۔ خان قائداد خان کا قلعہ، یہ قلعہ خستار شہر کے بالکل مرکز میں جناح روڈ پر واقع ہے۔ اس قلعہ کو خان قائداد خان نے 1872 میں تعمیر کروایا تھا۔ جب ڈاکٹر بیلیو نے اس علاقہ کا دورہ کیا، اس نے یہاں جھونپڑیاں دیکھی۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ خستار سے تھوڑے ہی فاصلہ پر ایک قلعہ ہے، اور اس نے اس کی دیواروں کا ذکر کیا۔ اس نے لکھا ہے کہ اس قلعہ کو 1871 میں تعمیر کیا گیا۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ اس قلعہ کی تعمیر کا مقصد یہاں سے گزرنے والے کاروانوں کی حفاظت کرنا ہے۔ وہ مزید یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس قلعہ میں 50 پیدل سپاہی اور 60
बराहई लेविस हुआ करते थे जिनके पास बंदूकें थी। मेसन ने भी अपनी किताब में उन्हीं बातों का जिक्र किया है। कैप्टन पीडी मेलैंड ने 1881 में इस किला का दौरा किया है। वो लिखते हैं कि किला में एक कुआं है जिसकी गहराई तकरीबन 50 फीट है। खजदार शहर का ये किला तकरीबन 4 एकड़ पर फैला हुआ है। उसकी दीवारें मिट्टी और पत्थर से बनी हुई हैं जो 6 फुट चौड़ी और 12 फुट ऊंची हैं। मौजूदा दौर में किला को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। उसमें सरकारी इमारतें हैं जैसे कि तहसीलदार का दफ्तर, पुलिस स्टेशन, कचहरी और एक मस्जिद है। पंचायत अपने हुजरे में बैठी एक गरीब किसान की जमीन और सरकारी कलेक्टर के माबैन केस पर गौर कर रही थी। यूं तो हुजरे में कई बड़े बुजुर्ग और किसान बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद मौजूद थे, मगर आखिरी फैसला हमेशा नवाब शाह मीर रईसानी का हुआ करता था। आगे पीछे होती 2 ब्लैक पेजारो गाड़ियां हवा में धूल उड़ाते हुए हुजरे के सामने आ रुकी। पहली गाड़ी से बामसला कार्ड अपना क्लेशनकोफ संभालते उतरा और पिछली सीट का दरवाजा खोला। सफेद कमीज सलवार पहने, ब्लैक कलर का वेस्ट कोट सेपन किए, उस पर क्रीम कलर की शॉल कंधों पर जमाए नवाब शाह मीर रईसानी रौबदार अंदाज में गाड़ी से उतरे। 50 से 55 साल के खूबरू वजीह मर्द थे। सफेद पर्दे, छोटे बाल, खाकी पट्टी, मतवासित दाढ़ी और घनी मोछें। आंखों पर ग्लासेस लगाए वो जून की तपती धूप से बचते तेज तेज चलते हुजरे के अंदर दाखिल हुए। उनके एहतराम में फर्श पर बैठे किसान और कुर्सियों पर बैठे सरकारी मुलाजिम खड़े हो गए। अनाबी होंठों पर बड़ी मुस्कुराहट सजाए, बड़ी आंखों पर से ग्लासेस हटाते हुए वो अपनी मखसूस नशिस्त पर जा बैठी और हाथ के इशारे से कार्रवाई शुरू करने का हुक्म सादर किया। किसान की दुहाइयां और कलेक्टर की वजाहतें सुनकर बिलाखिर उन्होंने किसान के हक में फैसला सुना। खजदार के शहरियों के लिए नवाब शाह मीर रईसानी की बात मानो पत्थर की लकीर हो। उनके फैसले के आगे किसी और की बहस करने की हिम्मत न होती। उनके फैसले पर किसान बरादरी में खुशियों की पुकार बुलंद होगी। सब यकबास होकर नवाब साहब के लिए सताइशी नारे लगाने लगे। शामीर साहब ने बल्कि झपकाते हुए सर को खम देकर उनकी पसीराई वसूल के और उठकर रवाना हुए। मशकूर किसान सर झुकाकर कमजोर हाथ जोड़े उनके पीछे हुजरे के गेट तक आ गया। गुलाम रसूल, बहुत मुबारक हो, गर्दन अकड़ाकर सोमानी लफ्जों में कहते नवाब साहब ने उस कमजोर किसान का जायजा लिया। सब आपकी मेहरबानी है सरकार। मजबूर किसान मारे खुशी के उनके आगे झुक गया। तो फिर उस जमीन के कागजात देने कल हवेली आ जाना। अपना दबदबा कायम रखिए। एक और हुक्म सादर किया गया। सरकार, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे पास इस खेत के अलावा कुछ नहीं है। गुलाम रसूल अपने मालिक की इस ख्वाहिश पर बल खाते रह गया। तुम कागजात लेकर नहीं आए तो मैं आ जाऊंगा और फिर अंजाम की जिम्मेदार तुम होगे। नवाब शाह मीर रईसानी अपनी गुस्सैली नजरों से उसे घूर कर ग्लासेस आंखों पर लगाते आगे बढ़ गए। गुलाम रसूल सर पीटता वहीं बैठकर चला गया। उसने सरकारी कलेक्टर से तो जमीन छुड़ा ली थी, मगर नवाब शाह मीर के हाथों चढ़ गई। नवाब शाह मीर रईसानी अपने आप में ही दहशत का दूसरा नाम थे। उनका यही पसंदीदा मशगला माना जाता। सियासत में कुर्सियों से खेलना और ज़ाती जिंदगी में गरीबों की जमीन जायदाद जबरदस्ती कब्जा करना। बाहर से आने वाले लोगों को वो गरीबों का मसीहा लगता था, मगर दर हकीकत वो रोए जमीन पर शैतान का मुतबादल था। जमरूश अपनी उम्र की टीनेज लड़कियों से काफी सुलझी और समझदार लड़की थी। हल्की ब्राउन बेसबी आंखें, पतली सतवान आँख, सफेद दांतों से मजीन खूबसूरत मुस्कान, लंबी गर्दन, भूरे सिल्की बाल, गंदमी पर कशिश रंगत और लंबे कद की हामिल व जिंदगी से भरपूर दोशीज़ा थी। चमकती आंखें और होंठों पर हमा वक्त मौजूद शफीक से तबस्सुम देखने वाले के दिल में घर कर जाती। हस्पताल की इंतजामिया से फराहम करदा सफेद कमीज सलवार पहने और सफेद ही दुपट्टा सर पर ओढ़े तो टेबल के पार खड़ी अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी, जब उसके पुराने मॉडल मगर स्मार्टफोन पर कॉल आने लगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। उसने अपनी पुरजोश आवाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। अरबाज कहाँ है? उसका नंबर बंद आ रहा है। सुबह घर से निकलते हुए कहा भी था उसे कि प्लम्बर भेज दे, किचन का नल लीक है, पर उसने अब तक नहीं भेजा। मैं कब से मुंतजिर हूँ। दुकान पर भी जाना है बेटा, पूछ कर बता बात की उसने प्लम्बर से कि नहीं। अख्तर साहब ने छूटते ही फरियाद सुनाई। जमरूश मोबाइल कान और कंधे के माबैन फंसाए हुए सामने खड़े मरीजों को पर्चियां भी बनाकर दे रही थी। रश के बायस उसे ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा था, मगर वो पूरी कुव्वत शनाई का
इस्तेमाल करके बाबा की बात सुनने लगी। बाबा, भाई की तो आज ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी है, शायद भूल गए होंगे। मैं अभी कुछ करती हूँ। जमरोश बाबा को समझाकर फोन काट दी, सीट पर से उठी और ऑपरेशन थिएटर का रुख किया। उसके अंदाजे के मुताबिक अरबाज की वाकई ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी थी। सर्जरीज के साथ साथ कोई एक्सीडेंट केस भी आन पड़ा था, जिसके बायस उसे सर खुजाने का भी वक्त नहीं मिल रहा था। बाबा के इंतजार का जानकर वो काफी मायूस हुआ। छोटी, तुम नंबर नोट करो, मैंने बात की है, तुम बस घर का एड्रेस बता देना। अरबाज उजलत में जमरोश को प्लम्बर का नंबर नोट करवाने लगा। जमरोश को अव्वल तो समझ न आई कि वो क्या करें, मगर बड़े भाई की मसरूफ तरीन हालत देखकर मान गई। अरबाज तेज तेज नंबर बताने लगा और जमरोश हाथ पर ही लिखकर अपनी टेबल पर लौट आई, जहाँ बेबस मरीजों की कतार लग गई थी। सर पकड़कर अपनी जगह पर बैठती वो किसी हेड स्टाफ के देख लेने के खौफ से पहले मरीजों की पर्चियां बनाने लगी। उस काम में उसे 1.5 घंटा लग गया। गर्मी और हब्स में कलम चलाती उसके दोनों हाथ पसीना पसीना होने लगे। काम से फारिग होकर उसने हथेली ऊपर को उठाई। क्या अल्लाह, ये नंबर तो मिट गया। सीट की पुश से टेक लगाने पर अपने हाथ पर लिखा हल्का होता नंबर देखकर वो अफसोस करती रह गई। कुव्वते दीद पर जोर देकर उसने हाथ पर नोट के नंबर की तस्दीक करते मोबाइल पर डायल किया और कॉल मिलाई। हेलो भाई साहब, सुबह आपको बुलवाया था ना, आप एड्रेस नोट करें। दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज सुनकर वो झट से बोल पड़ी। किसने कहाँ बुलवाया है जाने मन? कॉल पर मौजूद शख्स का बेहुदा जवाब सुनकर जमरोश दंग रह गई। मुंह बनाए उसने मोबाइल फोन कान से हटाकर स्क्रीन पर झलकते नंबर को देखा जरूर था। आप प्लम्बर है ना? उसने तहजीब का मुजाहरा करते हुए दोबारा पूछा। तुम बोलो तो प्लम्बर, मैकेनिक, जमादार सब बन जाए। उसे अंदाज और मानी जवाब के साथ कह बुलंद हुआ तो जमरोश ने तपते हुए अंदाज में कॉल काट दी। घटिया आदमी। मुंह में बड़बड़ाते उसने बाबा का नंबर डायल किया, मगर कॉल अम्मा ने मसूल की। रहने दो, तेरे बाबा खुद ही निकल गए प्लम्बर लाने। एक तो पहले ही पानी की इतनी किल्लत का सामना करना पड़ा, ऊपर से तुम दोनों की गफलत से बकिया कसर भी पूरी हो रही है। बख्तातून देसी अंदाज में जमरोश को ही डपटने लगी। जमरोश बिना वजह अम्मा की बातें सुनकर कॉल काट दी, अपने काम की जाने मुतवज्जह की। उस रॉन्ग नंबर का अंजाम वक्त ही बताने वाला था। खसदार के शहर में वाक़ई छोटे से गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के सामने खड़े रिक्शे में टांग लटका कर बैठे टीपू उस्ताद खबासत से उस अनजान नंबर को सेव करते पूरी बच्चे से निकाल रहा था। क्या देख रहे उस्ताद, फिर दांत निकले हैं। टीपू उस्ताद के बगल में खड़ा शानू मोबाइल के अंदर झांका। कोई नई तितली फंसी है शानू? ओह, क्या आवाज थी, बिल्कुल मलाई जैसी। टीपू उस्ताद दरिंदगी से जमरोश की आवाज को याद करते लब काटने लगा। उसकी ये हरकत देखकर शानू ने भी सर दाह बढ़ते सर पर हाथ फेरा था। आवाज इतनी मुलायम है तो खुद कितनी नरम होगी। एक और जुमला कसा गया, फिर कब मिल रहे उस्ताद? शानू ने हंसते अंदाज में हंकारा भरा। पहले पटाने तो दे, अभी अभी तो नंबर हाथ लगा। कमीनगी से आंख मारकर इशारा करते हंस दिया। कॉलेज की छुट्टी हुई तो शानू अपने रिक्शे के जानिब आया और दोनों सवारी का इंतजार करने लगे। टीपू उस्ताद बज़ाहिर तो एक गिराज का मालिक और फारिग औकात में रिक्शा ड्राइवर था, मगर चोरी छुपे उसके कई गैर कानूनी धंधे करने वाले लोगों से रवाबत थे। वो रिक्शा ड्राइवरी की आड़ में स्मगलिंग और मंशियात की खरीदो फरोख्त में बड़ा हाथ रखता था। बेशतर औकात वो कानून से बच जाता, मगर कभी पकड़ा भी जाता तो बलाए जात से फौरन छुड़वा लिया जाता, जिससे उसकी आयाशी और बेफिक्री बरकरार रहती थी। खसदार के सबसे कदीम और बड़े नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखने वाले नवाब शाह मीर एहसानी सियासी रहनुमा थे। कोयटा शहर से 300 किलोमीटर के फासले पर मौजूद खसदार शहर में उनकी हवेली 2 एकड़ के रकबे पर फैली हुई थी। उस सुबह बड़ी हवेली के मजबूत दीवारों पर सूरज की नफेस किरणें अपने वजूद में कई रंग समेट कर सुरीली दस्तक दे रही थी। हवेली का वसीओ अरीज सरसब्ज़ लान सुबह सवेरे की धूप में बेहद निखरा हुआ महसूस हो रहा था। इंतहाई नफासत और तरतीब से सजे गमलों में पौधे और फूल माहौल को तरोताज़ा कर रही थी। लॉन के चारों तरफ बेहद मेहनत और खूबसूरती से सजाई क्यारियां भी सुबह के इस्तकबाल में बाहें फैलाए खड़ी थी। ताज़ा फूलों की महक और दरख्तों पर बसेरा किए परिंदों का चहचहाना फिसा को मशहूर कुन खूबसूरती बख्श रहा था। ऐसे में हर गुजरने वाले कुछ पल के लिए मशहूर होकर रह जाते। बड़े आहनी गेट पर मौजूद गार्ड्स को तलाशी देकर शिकस्ता कदमों से चलता गरीब किसान गुलाम रसूल फटी पुरानी कमीज के बगल में फाइल दबाए अपने भाई और टीनेज बेटे के हमरा बड़ी हवेली के अहाते में दाखिल हुआ। नजर की पहुंच तक फैले लॉन में चारों सिमत नजर दौड़ाते वो संगे मरमर से बने सेंट्रल फवारे के गेट घूमकर हवेली के बरामदे के सिरे पर आकर रुके।
बड़ी हवेली जितनी बाहर से खूबसूरत थी उतनी ही अंदर से आलीशान। नवाब शमीर अहसानी के बूटों के चाप पर गुलाम रसूल और उसके भाई बेटे ने नजरें झुकाई। सरकार रहम करो, बख्श दो, उसकी रोजी रोटी उससे जमीन से है, अगर वो जमीन आप ले लेंगे तो बेचारा मर जाएगा। ये उसका बड़ा लड़का है, बेरोजगार है, क्या करेंगे गरीब लोग। गुलाम रसूल के भाई ने अपनी जानिब से दरख्वास्त शुरू कर दी। नवाब शमीर अपनी शान शौकत लिए बरामदे के रूबरू बड़ी सरबराही कुर्सी पर बैठे और हैंडल्स पर बाजू फैलाए टांग पर टांग रखे गरीब किसान की फरियाद सुनते पैर झल्लाने लगे। गुलाम रसूल का भाई अपनी ही धुन में लरसते हुए गोया रहा। शामिर साहब की अकाबी नजर उस पर से होती हुई पीछे खड़े जवान पर पड़ी। वो जवान कद काट में बिल्कुल शामिर साहब की हूबहू वजह मर्द था। वही लंबी नाक, बड़ी आंखें, अनाबी होंठ, जिसामत के लिहाज से कसरती बॉडी, मजबूत बाजू, काले घने लंबे बाल और नफासत से बनाई फ्रंट शेप। तो जवान की शामिर साहब से इतनी मुशाबत थी कि दोनों की मुस्कान भी मुतगय्यर न थी। अपने कमर से बंधे मियान पर हाथ रखे वो बिना पलक झपकाए नवाब साहब को देख रहा था। जहां उन्होंने सर को कम देकर इशारा किया, वहां उसने मियान में रखी तलवार निकालकर गुलाम रसूल के भाई के गले पर फेर दी। उस मजबूत बाजू के जोर और तलवार की तेज धार से गुलाम रसूल का भाई बेआब माही की तरह तड़प उठा। एक लम्हे को गुलाम रसूल और उसका बेटा साकित हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ सका कि एकदम से क्या हो गया, और जब तक हवास बहाल हुए वह बूढ़ा आदमी गला पकड़े फर्श पर गिरा कराह रहा था। मुझसे टकराने की हिम्मत करने वाले का मैं यही हशर करता हूँ गुलाम रसूल। फाइल दो और अपने भाई को जल्द अस्पताल पहुँचाओ। वक्त जाया करोगे तो भाई की जान गंवा बैठोगे। नवाब शामिर अपनी जगह से खड़े होते घुराए। गुलाम रसूल सर पीटता हुआ फाइल वहीं फर्श पर फेंकता खून से लुथड़े भाई को बेटे की मदद से उठाकर गेट की जानिब भागा। शमीर साहब के खास मुलाजिम शकूर ने फाइल उठाकर झाड़ी और मुअद्दब अंदाज में सर झुकाए नवाब साहब के आगे पेश की। वो जवान तलवार अपनी मियान में वापस फंसाकर शमीर साहब के पहलू में आ गया था। मेरी स्टडी में रख दो। शमीर साहब ने शकूर को हिदायत देते हुए उस जवान को सताइशी नजरों से देखा और खुद से लगाकर मजबूती से शाना थपथपाया। उसकी फीकी मुस्कुराहट में जान आ गई। वो लब दांतों में दबाए नवाब साहब के कंधे पर सर रखते उनके गिर्द हसार बना गया। अख्तर साहब के घर में रोजमर्रा की शिकायत शुरू थी। बख्त खातून बेटे और बेटी को गुर्बत और देगर दरपेश मसाइल गिनवा रही थी। तुम दोनों का यही हाल रहा तो फाकी काटने पर जाएंगे। कैसी नौकरी है कि वक्त पर तनख्वाह भी नहीं मिलती। तेरे बाबा की करियाने की कमाई से मैं घर का खर्च पूरा करूं या बिजली गैस के बिल जमा करूं। सहन में आमने सामने रखी दो चारपाइयों में से एक पर वो बैठी गमगुसारी कर रही थी। दूसरी चारपाई पर अरबाज और समरूश सर झुकाए अपनी बेबसी और गरीबी पर लब भींचे रहे। और तुम? उनके मुखातिब करने पर समरूश ने पलके उठाकर मासूम शक्ल बनाए अम्मा को देखा। ये कयामत का सामान जो बाबा ने थमा दिया है, रात रात भर तो चार्ज पर लगा रहता है। उसको बेचकर सिलाई की मशीन ठीक करवा लो और मेरे साथ बैठकर सिलाई कर दिया करो, 4 पैसे आ जाएंगे। अम्मा ने समरूश के सेकंड हैंड मोबाइल को तनकीद का निशाना बनाया। अरबाज ने लंबा सांस खारिज करके सर झटका था। अख्तर साहब खुशगवार तासुरात बनाए अम्मा के पास जा बैठे। गम क्यों करती हो बक? अल्लाह हमारा भी है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान न हुआ करो। यूं बच्चों पर गुस्सा करने से क्या मिल जाएगा? वो अपने अपने हिस्से की मेहनत मशक्कत कर तो रही हैं, बस तुम दुआ करो। अख्तर साहब की नसीहत पर बक खातून खामोश होगी। शोहर के आगे न बोलना उनके तरजीहात में पहले नंबर पर था। रात का सफर अपने मतईन रास्ते पर रवा दवा था। गर्मी की शिद्दत और बिजली की लोड शेडिंग के बायस अरबाज बरामदे में ही चारपाई पर सो गया था। जमरूश खिड़कियां दरवाजे खोले तो टाई पर कभी दाएं करवट होती तो कभी बाएं। मच्छर की भिनभिनाहट और गर्मी से पहले ही उसकी नींद महाल थी कि बची कुची कसर चार्ज पर लगे मोबाइल फोन के रिंगटोन ने पूरी कर दी। तो हड़बड़ा कर उठ बैठी और झपट कर मोबाइल बंद कर दिया। दिल बर्फ रफ्तारी से भी तेज धड़क रहा था। उसे गनोदगी से बाहर आने और हालात समझने में कुछ वक्त लगा। अब उसकी हालत संभली नहीं थी कि दोबारा कॉल आने लगी। जमरूश ने पहले दीवार पर लगी घड़ी में वक्त देखा और फिर दरवाजे के दर से चांदनी में झलकते भाई को। उसके हाथ में पकड़े मोबाइल में मुसलसल थरथराहट हो रही थी। आखिरकार तब कर कॉल मसूल की और धीमी आवाज में हेलो किया। रात की रानी सो रही हो क्या? कॉल पर मौजूद टीपो उस्ताद की बात से जमरूश की जिस्म में गर्म लावा सरद कर गया। बेगैरत। वो अपने तैश और डर पर काबू करते इतना ही बोल सकी। कॉल बंद करते हुए उसने स्पीकर पर बुलंद आवाज में कहकर गूंजते सुना था।
तेज तेज सांस लेते खुद को कंपोज करके और फिर से सोने लेटी, मगर टीपू उस्ताद की बेहयाई बाज न आई। अब की बार व्हाट्सएप पर एक साथ कई मैसेजेस मौसूल हुए। समरोज ने धड़कते दिल के साथ मैसेजेस खोले तो मानो सांस गले में अटक गई थी। आंखें खुली की खुली रह गई। एक कतार से कई सारी फहाश वीडियोस भेजी गई थी। उसके हाथ कांप उठे। उसे तेजी से मैसेज डिलीट किया और नंबर ब्लॉक कर दिया। ये कितना गंदा इंसान है, उसने दिल में सोचा था। मजीद कुछ देर मोबाइल हाथ में लिए साकित बैठी वो अम्मा का दिया ताना याद करने लगी। वाकई ये कयामत का सामान ही है। इस फितने से जितना दूर रही अच्छा है। उसने दिल ही दिल एतराफ किया और मोबाइल ऑफ करके अलमारी में बंद करके सोने लेट गई। बड़ी हवेली में नई सुबह का आगाज नवाब महावीर रसायनी की वर्जिश से हुआ। वो ब्लैक कलर का ट्रैक सूट पहने पूरे लॉन के अहाते में जॉगिंग कर रहा था। उस वक्त धूप की शिद्दत कम थी और हल्की हवाओं ने शहर का रुख किया हुआ था। हवा के बहाव और महावीर की जॉगिंग से उसके गर्दन तक आते लंबे घने बाल लहरा रहे थे। पूरे लॉन के 3 राउंड लगाकर वो कुछ देर सुस्ताने संगमरमर के बने फव्वारे के किनारे बैठ गया। फव्वारे से बरसते पानी की छींटी उसके चेहरे पर पड़ी तो महावीर आंखें बंद कर गया। सुबह सवेरे ताज़ी हवा और ठंडे पानी की बूंदियों से सरशात करी थी। कल के उठाकर बड़ी सी आंखें आसमान के मशरकी हिस्से पर जमा कर वो उफक में तलू आफताब को देखने लगा। 6 बजते ही महावीर के स्मार्ट वॉच में अलार्म बजने लगा। उसे उफक पर से नजरें हटाकर वॉच पर मरकूज कर दी। अलार्म के आखिरी टिक टिक पर उसका मखसूस मुलाजिम बहादुर खान छोटे से ट्रे में गिलास भर कर माल्टे का ताज़ा जूस लिए महावीर के अकब में मौजूद था। महावीर हल्का सा मुस्कुराया और जूस का गिलास उठाकर स्विमिंग पूल एरिया में रखी चेयर की सिमत बढ़ गया। उसके काफी आगे जाने तक बहादुर खान सर झुकाए मौदब अंदाज में खड़ा रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता सर उठाकर महावीर की पुष्ट देखी। अपने 20 साल मुलाजमत में उसने बहुत ही कम मौकों पर महावीर की मुस्कुराहट देखी थी। वो ज्यादा खुश भी होता तो भी महज मुतबस्सम हो जाता। महावीर के एक बराबर सफेद दांत तो खाने के दौरान भी कम ही नजर चश्मा हो पाते। खोल कर हंसना या पूरे दांत निकाल कर मुस्कुराना तो महावीर की मिजाज में था ही नहीं। उसके जूस नोश कर लेने तक बहादुर खान उसी जगह खड़ा था। महावीर ने लॉन में वापस आकर गिलास मुनज़्ज़म तरीके से ट्रे में रखा और ट्रैक सूट की शर्ट उतारता मेज पर रखी। अपने दिल अजीज तलवार उठाकर प्रैक्टिस करने लगा। नाश्ते के वक्त तक अब यही उसका मशगला था। दूसरी तरफ समरोज की रात थकन भरी रही। अम्मा उसे तीसरी मर्तबा नमाज फजर के लिए बेदार करने कमरे में आई थी, मगर वो सर दर्द के बायस अपने बिस्तर से उठ भी न सकी। वो खुली आंखों से पेशानी मसलते छत से लटके पुराने पंखे को देख रही थी जब बाबा और अरबाज मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करके घर लौटे। बाबा की आवाज पर समरोज सर दर्द भुलाए झट से उठी और वुज़ू करने गुसल खाने में घुस गई। नमाज के बाद उसने अम्मा के साथ नाश्ता बनाने में हाथ बटाया और फिर ड्यूटी पर जाने तैयार हो गई। अमूमन वो अरबाज के साथ मोटरसाइकिल पर जाया करती थी, मगर किसी रोज मोटरसाइकिल खराब होती या अरबाज ने किसी और काम से जाना होता तो उसे पैदल जाना पड़ता। हजार के नेक और खुशअस्लूब लोगों के माबैन उसे कभी अकेले पैदल जाने में दिक्कत न हुई, जब तक कि उसका सामना टीपू उस्ताद से न हो गया था, जो